Hello everyone. Hi. So we are back today with another episode of Masoom Muskan. Like you all know, this show is hosted every Sunday at 7 p.m. Welcome Pradeep sir, welcome Ankita. Hello everyone. Welcome to the show. I hope I am clearly audible and visible to all of you. Thank you Ankita. Can you just let me know if I am clearly audible and visible to you all? Please give me a thumbs up. Yes, thank you Ankita. Thank you for letting me know. Welcome to the show Masoom Muskan. Struggles behind innocent smiles. From Unimo, Universe of Moms, which is the world's largest community of mothers with over 500,000 moms worldwide. I am your host Gunjan Aluwalia, trying to spread awareness, acceptance, and positivity for special needs and sensitize people towards them through this platform. Welcome Anoop, welcome Manoj, welcome everyone to the show. Welcome Shobha, hi. Hi Sandesha, welcome to the show. Someone has rightly quoted, when you focus on problems, you have more problems. When you focus on possibilities, you have more opportunities. और जैसा कि मैं आपको हमेशा से बोलती हूँ that with special need kids, we really need to focus on their strengths. So we can find ways to overcome their weaknesses and the challenges they are facing. तो हमें हमेशा देखना चाहिए कि हमारे बच्चे के अंदर क्या पॉजिटिव है rather than focusing on their weaknesses. We should find out what is positive in them. Welcome Aditya to the show. तो यहाँ पे अगर हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं तो मुझे एक और कोट आ रहा है दिमाग में कि चैलेंजेस आर व्हाट मेक लाइफ इंटरेस्टिंग एंड ओवरकमिंग देम इज व्हाट मेक्स लाइफ मीनिंगफुल. सो हमें इन बच्चों की लाइफ भी मीनिंगफुल बनानी है कहीं ना कहीं. And for that, it is must, that we start the therapies as early as possible. Whenever we get to know that our child is facing a problem, we should reach out to a specialist and start early intervention. As I always say, early intervention is the key. तो बात करें अगर चैलेंजेस की तो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस कहाँ फेस करते हैं बच्चे ADL में. तो आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रदीप कुमार जो हमें बताएंगे ADL क्या है और वो क्या चैलेंजेस हैं जो ये बच्चे फेस करते हैं और हम उनकी इंटरवेंशन कैसे कर सकते हैं. तो डॉक्टर प्रदीप कुमार, ही इज़ एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ शब्द रिहैबिलिटेशन सेंटर which is located in Delhi. He has more than 5 years of experience in this field. He is working with both pediatrics and adult cases. He is known for giving intervention using evidence-based approach and skills-based approach. He and his team work on various models like sensory integration model, biomechanical model, neurodevelopmental model, rehabilitation model, etc., where treatment or remedies are suggested for sensory issues, handwriting difficulties, abnormal muscle tone, ADL difficulties, neurodevelopment issues, problem with visual processing skills, auditory processing skills, gross and fine motor skills difficulty, play and social skills, problem solving skills, life skills, and many more where your children are facing problems. So let me see if he's here. Welcome Kanta, welcome Ritu. I would like to again stress early intervention पे ध्यान दीजिए. Keep a note of red flags. Sir is here. Hello ma'am. Hello sir, welcome to the Good show. evening. Good evening. Sir, welcome to the show. मासूम मुस्कान. Thank you ma'am. Thank you so much. तो सर अभी मैं कुछ आपके बारे में बता रही थी कि तो आप उस पर थोड़ी सी लाइट डालिए कि कहाँ कैसे आपने स्टार्ट किया और ये शब्द रिहैबिलिटेशन ये कैसे स्टार्ट हुआ और शब्द क्यों आपने इसका नाम ऐसा रखे है, तो इसके बारे में अगर डिस्कस करें. Yes. Thank you so much for giving me pleasure to hear. And
सबसे जैसे आपने क्वेश्चन किया कि ये हमने शब्द नाम क्यों रखा, ये बहुत क्रिएटिव नाम हमने सोचा था। और व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन तो हम लोगों ने ऑटिज्म केस पे बहुत सारी रिसर्च किए थे। सो मुझे लगा जो ऑटिज्म का जो मेन फोकस होता है वो वर्ड पे होना चाहिए, और वो वर्ड पे होता भी है। सो हमने स्टार्ट किया कि अच्छा। एक ऑटिज्म के लिए अवेयरनेस के लिए तो एक शब्द, हिंदी शब्द रखे, ताकि हम इंडियन के लोगों के लिए या इंडियन पीपल के लिए हम प्रॉपर एक वर्क कर सकें। So I work with many institutions like in autism, in AIMS and Amar Jyoti Charitable Trust, and ओके। I work with Sujan ma'am. She is in Australia, and I work in a ओके। PO model, research model. हम्म। So स्टार्टिंग यहाँ से हुआ कि जैसे हम लोगों ने, आई डिड माई ग्रेजुएशन इन फ्रॉम पंडित दीनदयाल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप। एंड जैसे ही हम लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, वैसे ही हमें ये समझ में आया कि पूरे जब दिल्ली में हम लोगों ने काम किया, गवर्नमेंट में एम्स में काम किया, तो हमें समझ में आता है कि रिसर्च बेस्ड और एविडेंस बेस्ड और स्किल बेस्ड अगर काम हो तो कोई भी कंडीशन हो, चाहे वो एडल्ट कंडीशन हो चाहे वो पीडियाट्रिक कंडीशन हो, उसको हम्म। लेकर आप परेशान नहीं हो सकते, कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकते आपको। क्यों? क्योंकि जब आप स्किल्स बेस्ड काम करते हैं, एविडेंस बेस्ड काम करते हैं, तो एक लेवल से हाँ काम जी। कर पाते हैं, एक लेवल बाय लेवल जा पाते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक पेरेंट्स ने बोला कि मेरे बच्चे को ब्रशिंग करना सिखाना है, या मेरे बच्चे को बाथिंग हम्म। सिखाना है, कुछ ग्रूमिंग सिखाना है, कुछ एडियल सिखाना है, और आपने सोचा कि चलो पहले यही स्टार्ट कर लेते हैं, यही इसी को स्टार्ट करते हैं। या कई बार आपने देखा होगा कि जब हम सेंसरी इंटीग्रेशन का कोई बच्चे का प्रॉब्लम होता है, तो हम क्या करते हैं कि स्किल बेस्ड काम ना करके हम लोग उनको फिजिकल करा रहे होते हैं, हम लोग उनको सेंसस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, लेकिन एडियल छोड़ देते हैं, मेन कंपोनेंट छोड़ देते हैं। फिर अगर कहीं मेन कंपोनेंट को उठा रहे होते हैं तो उसके जो लेवल है वो छोड़ देते हैं। तो हमें ये ओके। चाहिए कि हम एक पूरे लेवल बाय लेवल एक स्किल बेस्ड काम हो, और एक जो रिसर्च हुई पड़ी है, पर्टिकुलर रिसर्च हुई पड़ी है, उसके बारे में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है पढ़ना। बहुत ही रेयरली चीज होती है, छोटे छोटे पॉइंट्स में रिसर्च के बारे में दिए होते हैं, हमारे में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं होती है, लेकिन हम लोग डर जाते हैं रिसर्च का नाम सुनते हैं। एविडेंस बेस का नाम सुन के डर जाते हैं कि इतना ये बात। रीड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो इस वजह हाँ से हमें जी। ये समझ में आता है कि नहीं, अगर हम लेवल से काम करेंगे तो हम हर चीज अचीव कर सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं बच्चे। हम्म। तो हम लोगों ने इस तरीके से स्टार्ट किया, और हम लोगों ने सोचा नहीं, अपने इंस्टीट्यूशन को ऐसा नहीं बनाना कि हाँ बस काम करो जाओ कराते रहो, नहीं। आपको रिजल्ट दिखेगा, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में रिजल्ट दिखेगा। सब रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर जब हमारी टीम काम करती है, तो आपको एक हाँ बहुत जी। छोटा प्रोटोकॉल बना के देती है कि 7 डेज का प्रोटोकॉल, कहीं भी पूरे दिल्ली एनसीआर में, पूरे मैं गुड़गांव तक की बात करता हूँ, अच्छे अच्छे काफी इंस्टीट्यूशन है, वहां पे बहुत लंबा लंबा ड्यूरेशन रखते हैं। 6 मंथ का ड्यूरेशन है, 1 ईयर का ड्यूरेशन नहीं। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि हम वो लेवल से काम करेंगे, तो हम उस लेवल को अगर 5 डे में भी कंप्लीट करके दिखा रहे, तो एक मोटिवेशन जाता है पेरेंट्स कि नहीं, हम सही सही बात है। जगह पे आए हुए। और वो जब सही भी हो बात है। सकता है जब आप बताएंगे कि देखिए आपको इस लेवल से जाना है, तब पेरेंट्स निश्चिंत हो जाता है कि नहीं, दिस इज द राइट वे। तो इस हाँ जी, तरीके से हम सही लोगों है। ने अपना इंस्टीट्यूशन डेवलप करने की कोशिश की है। ये बहुत अच्छा है सर। वेलकम थैंक यू। अनीशा, वेलकम परिमल, वेलकम वंदना, वेलकम मुनाश, वेलकम एवरीबॉडी टू द शो। तो सर, मैं जैसे आपने बात करी इसमें एडीएल की, जिसके बारे में हम आज बात भी करना चाहते हैं, तो पहले आप ये समझाइए कि एडीएल है क्या। हमारे पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि एडीएल क्या है, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है। अगर मैं लेमन लैंग्वेज की तरह यूज करूं, मैं ज्यादा टर्म टेक्निकल वर्ड यूज ना करते हो कि हाँ, टेक्निकल वर्ड जैसे है बेसिक एडियल है, बी एडियल, इंस्ट्रूमेंटल एडियल कहते हैं। ये दो तरह के एडियल होते हैं बेसिकली हमारे, लेकिन होते तो बहुत सारे हैं। फंक्शनल एडियल भी होते हैं, मोबिलिटी एडियल भी होते हैं, सोशल एडियल भी होते हैं, तो होते बहुत सारे एडियल है। लेकिन हम मोस्टली जो कंडीशन देख पाते हैं या जो हमें पेरेंट्स को पता होते हैं, बेसिक एडियल होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एडियल होता है। लेकिन अगर मैं लेमन मैन की लैंग्वेज की यूज करूं, तो आप ये सोचिए कि जब आप सुबह उठते हो, आप बेड से या बेड पे भी होते हो सुबह, वहां से लेकर रात के सोने तक और सोने के बाद तक कि आपकी स्लीपिंग कैसी है, वहां तक भी हम लोग एडियल पे काम कर रहे होते हैं। वही पूरा जो जो भी आप काम कर रहे हैं, बैठ रहे, उठ रहे, चल रहे, कोई भी गैजेट यूज कर रहे हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सुबह से सोने से लेकर, उठने से लेकर रात के सोने तक, जो भी आप काम करते हो उन सबको हम एडियल में इंक्लूड करते हैं।
अब ऐसा नहीं कि आप एक्टिविटी ही करेंगे तो ही एडीएल है, अगर आप बैठे हुए हैं, आपका माइंड सेट है, तो भी वो उस एडीएल में कन्वर्ट होगा। क्यों? क्योंकि माइंड से जब तक आपका ब्रेन अच्छा नहीं है, आप सोचिए थिंकिंग ही प्रोसेस नहीं कर सकते किसी भी एडीएल को करने के लिए। तो ऐसा नहीं होता। हम लोगों का एक मिथ है कि जब हम फिजिकली कुछ नहीं कर पाते तो हाँ हमारा एडीएल खराब है, या हम एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग नहीं कर सकते। लेकिन आप ये सोचिए, अगर ब्रेन थिंकिंग प्रोसेस अच्छा नहीं है, आपका माइंडसेट अच्छा नहीं है, या आपके माइंडसेट में कुछ प्रॉब्लम है, ब्रेन को लेके कुछ इश्यू चल रहे हैं, तो भी आप एडीएल परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आपको फिजिकली एज वेल एज मेंटली दोनों तरह से वर्क करना पड़ता है, और दोनों तरीके से जब आप वर्क करते हैं तब एडीएल कंप्लीट होता है। तो एडीएल बेसिकली यही है, आपको सोचना चाहिए आप खेल रहे हैं, या आप पढ़ रहे हैं, या आप कुछ सीख रहे हैं, या आप नहा रहे हैं, आप ग्रूमिंग कर रहे हैं, बाथिंग कर रहे हैं, टॉयलेटिंग कर रहे हैं, ब्रशिंग कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, या गैदरिंग कर रहे हैं, कहीं मीटिंग कर रहे हैं, कहीं कहीं आप अपनी जॉब पर जाके अपना काम कर रहे हैं, वहां भी एयरटेल की बहुत जरूरत पड़ती है। तो ये मतलब कुछ भी आप करते हैं पूरे दिन में, वो सारे इंक्लूड हो जाते हैं एयरटेल में। तो ऐसा नहीं है, और लोगों को नहीं सोचना चाहिए कि हाँ फिजिकली कुछ इश्यू होगा जब भी एडीएल अफेक्ट हो सकता है, या मेंटली भी इश्यू होता है तो ही एडीएल अफेक्ट हो सकता है। दोनों कंडीशन ठीक होने के बावजूद भी एडीएल कई बार अफेक्ट हो जाता है। क्यों? हमें नहीं पता होता कि हम खाए कैसे, हमें नहीं पता होता हमें दूसरे से बात कैसे करनी है, हमें ये नहीं पता होता कि हम कैसे इंटरेक्ट करें, कैसे खेले, स्किल्स कैसे लगाए, रीजनिंग कैसे लगाए, तो वो भी सारे एडीएल का पार्ट आ जाता है। तो आप ये छोटे छोटे कंडीशन है, छोटी छोटी चीजें हैं जिसपे हमें ध्यान देना चाहिए। और हमें लगता है कि नहीं काम करेंगे जब ही एडीएल अफेक्ट है, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है हमें। जिस काम को लेकर आपको दिक्कत हो रही है वही एडीएल में इंक्लूड हो जाता है। तो ये बेसिकली एडीएल होता है। ओके सर, ये तो आपने बहुत डीप नॉलेज नहीं तो अदरवाइज तो सर इतना ही समझते हैं, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, जो इसके शॉर्ट यस फॉर्म यस। एडीएल का जो है, एडीएल शॉर्ट फॉर्म है एक्टिविटीज फॉर डेली लिविंग का मतलब हमारे जो रोजमर्रा की हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, खाना पीना, उठना बैठना, और सर ने तो उसके अंदर बहुत डेप्थ डाल दी है। थैंक यू सो मच सर। तो मैं यहाँ पे जानना चाहती हूँ, जैसे आप कह रहे हैं कि फिजिकली और मेंटली दोनों स्ट्रांग होना चाहिए, तो हमें बच्चों में ऐसे कौन सी डिफिकल्टीज देखने को मिलती हैं जब वो एडीएल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं? तो सबसे बेसिक क्या डिफिकल्टीज होती हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि जब एडीएल कोई चीजें होती है तो कौन कौन सी डिफिकल्टी। एक्चुअली ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन देखिए हर बच्चा एक डिफरेंट है, हर बच्चा डिफरेंट है। हाँ, सीपी के बच्चे अलग है, डाउन सिंड्रोम के बच्चे अलग है, मेंटल रिटार्डेशन के बच्चे अलग है, और सारे बच्चे अलग अलग तरीके से अपने एडीएल को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो कंडीशन ये हो जाती है, कंसर्न ये हो जाता है कि जब आप सीपी के बच्चों को आप देखेंगे तो उनका मसल टोन टाइट होने की वजह से, या मसल टोन फ्लॉपी होने की वजह से, टोन इंक्रीज होने की वजह से जो टाइटनेस आ जाता है, स्पास्टिसिटी आ जाता है, उनकी वजह से वो अलग तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं एडीएल को। डाउन सिंड्रोम के बच्चों का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो डाउन होता है, वो अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो जेनेटिक कंडीशन के बच्चे हैं, वो भी जेनेटिक कंडीशन में भी, जैसे फिनाइलकोटिनुरिया क्राइडू सिंड्रोम करके हैं, या बहुत सारे कंडीशन के जेनेटिक कंडीशन के बच्चे होते हैं, या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के, पीडियाट्रिक कंडीशन के, या जैसे ऑर्थोपेडिक कंडीशन भी कई बार आपको देखने को मिलता है बच्चों में। हर बच्चा अलग है, और हर बच्चा अपने अलग तरीके से परफॉर्म कर रहा होता है। अब आप थोड़ा सा और लॉजिकली अगर इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में, दोनों कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरीके से एडीएल को परफॉर्म किया जाता है। अगर मैं बात करूं कि अगर इंडियन में परफॉर्म करना है, कई लोग जग से नहाते, कई लोग मग से नहाते, आपने देखा होगा बाथिंग जो कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे जो इंटरनेशनल अप्रोच में यूज किया जाता है कि शावर से नहाते हैं, वहां पे जग मग का यूज नहीं करते। तो वहां पे क्या होता है कि हमें हाथ से यहाँ पर सिखाना है, वहां पे हमें हैंड से नहीं सिखाना कि आप पानी डालो अपने ऊपर, ठीक है। तो ये जो पॉइंट को समझ पाते हैं ना, वही बेसिकली एडीएल पे काम कर पाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि स्टैंडर्डाइज स्केल उठा लेते हैं, बैटरी उठा लेते हैं, और उस पर असेसमेंट कर देते हैं कि हमने देखो एडीएल असेसमेंट कर दिया आपका। नहीं, आपको ये देखना है कि घर कैसा है उनका, वो कैसे काम करते हैं, कैसा कैसा इकोनॉमिक स्टेटस है उनका, क्या वो जो आप प्रेफर करने वाले हैं उस बच्चे को, क्या वो कर सकता है कि नहीं कर सकता। और यही मेन डिफिकल्टी होती है। और यही जब चीजें आप समझते नहीं है, तब आपको पता लगता है कि मेरा बच्चा एडीएल क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप तो इंटरनेशनल अप्रोच लगा रहे हो, जबकि हमारा बच्चा तो इंडियन है, वो इंडियन टॉयलेट में बैठ रहा है, वेस्टर्न टॉयलेट में नहीं बैठ रहा है। तो ये सारी चीजें को समझना जरूरी है। एक एक चीज को पैराग्राफ में लिखिए। अगर खाना खा रहा है तो स्पून से खाता है, हाथ से खाता है,
कई हाँ बच्चे राइस हाथ से खाना पसंद करते हैं, लेकिन आप सिखा रहे हो स्पून से खाओ, तो कहाँ से सीखेगा वो? तो ये सारी हाँ चीजें सर, घर डिफिकल्टी आती है। तो ये सब चीजें हैं मैम। डेफिनेटली सर, घर में जो बच्चे देखेंगे वही करेंगे, और अगर हम उन्हें दूसरे तरीके बिल्कुल। से समझा रहे होंगे तो डेफिनेटली। तो सर यहाँ पे आपने हाँ अभी एग्जाम्पल लिया जैसे बेदिंग का या खाना खाने का, तो इन सबको जब आप एडीएल एक्टिविटीज में बच्चों के इंटरवेंशन करते हैं तो क्या कोई आप स्पेसिफिक स्टेप्स फॉलो करते हैं, या बस सीधा चम्मच उठाया और खा लिया, या बच्चे को पानी दिया मग दिया और बस बोलना सिखाना शुरू कर दिया, या कोई स्टेप वाइज ही करते हैं? जैसे अगर हम बटनिंग अनबटनिंग ही ले, तो हमने कितनी बार सुना है कि बच्चा अनबटनिंग पहले कर लेता है, बटनिंग बाद में सीखता है। तो ऐसे क्या बिल्कुल हर एडीएल एक्टिविटी के कोई स्टेप्स होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे पास बहुत सारे स्किल्स है, हर काम को करने के लिए स्किल्स की जरूरत पड़ती है। और स्किल्स भी हम लोग क्या करते हैं, हमें कुछ पॉइंट्स स्किल्स पता होते हैं, और मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं बहुत थेरेपिस्ट को मैं देखता हूँ, हम लोग थोड़ा सैड हो जाते हैं कि क्यों एक थेरेपिस्ट या कोई स्पेशल एजुकेटर या जो हमारे फील्ड के है, जो भी लोग काम कर रहे हैं, वो ब्रेन को क्यों नहीं समझ रहे, वो स्किल्स को क्यों नहीं समझ रहे। अगर सपोज दैट मुझे खाना खाना है, तो उसके लिए मुझे देखना जरूरी है, उस खाने को देखना जरूरी है, उस फूड को देखना जरूरी है, उस फूड को समझना जरूरी है। आप समझ रहे? जरा सुनिएगा, उसको थोड़ा सा और डीपली जाएंगे हम इसके बारे में। उसको देखना जरूरी है, उसको पहले समझना जरूरी, देख के कि क्या रखा हुआ है थाली में या प्लेट में, क्या रखा हुआ है वहां पर। तो हाँ वहां पे जी। विजुअल प्रोसेसिंग स्किल का यूज करते हैं हम लोग, जिसमें आई कांटेक्ट, अटेंशन, कंसंट्रेशन, आपका फॉर्म कटेंसी, विजुअल रीजनिंग, विजुअल लॉजिक, आपका विजुअल परसेप्शन स्किल्स, ये सारे विजुअल प्रोसेसिंग स्किल्स में आ जाते हैं आपके, कि किसी चीज को देख के आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। फिर आप क्या करते हो, आप उस खाने को सुनते हो कानों से कि हाँ ये चावल है ऐसे खाओ, रोटी है ये रोटी खाओ। तो आपको ऑडिटरी भी ठीक होना चाहिए। अब पंजाबी में बोलते हैं रोटी वोटी, वोटी भी कहते हैं, वोटी कहते हैं कई बार लोग, तो यूज करते हैं रोटी वोटी, तो बच्चा समझ नहीं पाता आप क्या बात कर रहे हो। तो ऑडिटरी प्रोसेसिंग स्किल पे काम करने की जरूरत है, मिलते जुलते साउंड को। दाल वाल लेके आना जरा, तो वाल नहीं समझ पाता बच्चा, अब फिर आप बोलते हैं कि नहीं बच्चा तो दाल को समझ ही नहीं रहा, तो आप वाल क्यों बोले पहले? ठीक है ना? तो ये जो प्रोसेसिंग है ना ऑडिटरी को लेके, कि हाँ आप इस चीज को समझो, ये हो गया आपका ऑडिटरी प्रोसेसिंग स्किल्स। इस पे काम करने की जरूरत है, इस स्किल्स पे। फिर आता है ग्रोस मोटर, क्या वो हाथ से यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो हाथों को अपने जानता है कि नहीं जानता। ग्रोस मोटर में भी काफी सारे स्टेप आ जाते हैं, कि इंटीग्रेशन कैसा है, बायोलेटरल इंटीग्रेशन है, मिड लाइन क्रॉसिंग है, या आपका टास्क इनिशिएशन है, टास्क कंप्लीशन है, क्या पर्टिकुलर ग्रोस मोटर में यूज कर रहे हो। फिर उसके बाद आता है फाइन मोटर, फिर आता है डिस्फेजिया का स्किल्स, कि आप निगल पाते हो कि नहीं निगल पाते हो, जॉ का यूज करने आता है कि नहीं करने आता आपका। तो इसमें रीजनिंग भी चाहिए आपको, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल चाहिए कि कैसे उठा के कैसे मुंह तक लेके जाना है, कॉपिंग स्किल चाहिए, सोशल स्किल चाहिए कि सामने वाले को देख के समझू मैं। ठीक है ना? ये तो बहुत सारे स्किल्स हैं। इमेजिनेशन स्किल चाहिए कि मैं जो खा रहा हूँ अच्छा खा रहा हूँ या कैसा खा रहा हूँ। कई बच्चे खाना देखते ही उगलने लग जाते हैं, इमेजिनेशन स्किल्स पे काम करना पड़ता है उस टाइम हमें। कई बच्चे देखते हैं, दूध देखते हैं, उसी टाइम उल्टी आना स्टार्ट हो जाती है, उनको अलग तरीके से काम करना पड़ता है। और आप कहते हैं कि नहीं मेरा बच्चा तो खाता ही नहीं, आइडियली परफॉर्म नहीं कर रहा हो, ईटिंग नहीं कर रहा हो। नहीं, आपने इमेजिनेशन पे काम नहीं किया, क्रिएटिविटी पे काम नहीं किया, आपने जजमेंट पे काम नहीं किया कि उसको कैसे लेके कैसे खाऊंगा तो मेरे को फायदा होगा, या क्यों खाना चाहिए मुझे खाना। कई बच्चों को खाना को पसंद ही नहीं करते, उनको कोई कैसा भी फूड खिला दो, उनको नहीं समझ में आता कि मुझे क्यों खाना चाहिए। तो वहां पे हम लोग जजमेंट पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे। तो ये सारे मैम ये स्किल्स है जिसपे काम करने की वजह से एडीएल आपका निकल कर आता है, एडीएल में परफॉर्म कर ओके। पाते बच्चे। लेकिन अगर आप स्किल्स पे काम नहीं करते, आप एक स्टेप लेवल पे काम नहीं करते, आप पहले देखो कि कोई भी एडीएल परफॉर्म करते किस स्किल्स की नीड पड़ रही है आपको। वो जब स्किल्स आप नीड होगी, वो स्किल्स का फिर स्टेप निकल के आएगा कि इस स्किल्स में कौन से स्टेप में जाके प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को। फिर वो स्टेप को फिर आप समझो कि उस स्टेप को कहाँ पे पॉइंट में दिक्कत। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग एडीएल परफॉर्म करते हैं। ओके। तो सर यहाँ पे वेलकम एवरीवन, पायल, निकिता, निरुपमा, आयुर्वेदा फॉर लिविंग, यू आर डूइंग अ गुड जॉब सर, इन्होंने लिखा है, थैंक यू सो मच। एंड सर इनका एक क्वेश्चन भी है, व्हाट वी कैन डू इन केस ऑफ नॉक्टर्नल इम्यूरोसिस। तो बेड वेटिंग के केस में सर क्या कर सकते हैं, और कैसे हम इसको इंटरवेन कर सकते हैं? अच्छा अच्छा।
बेड वेटिंग को लेके मैम देखिए, बेड वेटिंग को लेके एक सीक्वेंस समझना जरूरी है कि बेड वेटिंग क्यों होता है बच्चों को। एक तो होता है स्लीप डिसऑर्डर की वजह से भी होता है कई बार बेड वेटिंग। और कई बार क्या होता है कि समटाइम आप ये देखिए कि जब बच्चे का एक जो ह्यूमन का भी एक साइकिल होता है, किसी चीज का साइकिल होता है। जैसे किसी बच्चे ने अगर 15 मिनट में 15 मिनट पहले पानी पिया तो उसे 15 मिनट बाद ही उसको वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो कई बच्चों का साइकिल होता है। कई बच्चे पानी पीते हैं वो 2-2 3-3 घंटे बाद जाते हैं। कई बच्चे तुरंत चले जाते हैं, ओके। फ्रिक्वेंटली चले जाते हैं। तो हमें ये समझना जरूरी है कि बच्चे का साइकिल कैसा है। अगर आप साइकिल पे अगर थोड़ा सा फोकस कर लेंगे तो आप किसी भी बच्चे को बेड वेटिंग से मतलब आप परेशान नहीं होंगे और इस चीज कंडीशन से आप जल्दी निकल पाएंगे। क्यों मैम, कई बार क्या होता है आपने नोटिस किया है, जब सेंसरी इशू होता है कई बच्चों में या नॉर्मल बच्चा भी होता है, मैं नॉर्मल बच्चे की बात करता हूँ, आप थोड़ा समझ पाएंगे हम। जब एक नॉर्मल बच्चा बेड वेट करता है तो उसे ये समझ में आ रहा होता है, थिंकिंग चल रही होती है उसको कि हाँ उसने कुछ गीला कर दिया है, इसलिए बच्चे रोने लग जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, बच्चे कई बार इरिटेट हो जाते हैं। तो ये जब चीजें देखने को मिलती है तो हमें ये समझ आता है कि बच्चे का थॉट प्रोसेस ठीक है वहां पे। लेकिन हमारे जब सेंसस के बच्चे होते हैं, सेंसरी इशू के बच्चे होते हैं, उनका थॉट प्रोसेस काम नहीं कर रहा होता है। तो आपको वहां पे जो सेंसरी इशू के बच्चे हैं, चाहे वो ऑटिज्म हो चाहे वो डाउन सिंड्रोम, अगर उनके अंदर सेंसस की प्रॉब्लम है तो पहले उनके सेंसस को लेकर काम करना पड़ेगा, उनके अंडरस्टैंडिंग पे काम करना पड़ेगा। फिर जब उनके सेंसेस डेवलप हो गया, अब उनको समझ में आने लगे कि हाँ वो बेड वेट कर रहे हैं, तो आपको ये समझना है कि उनका एक साइकिल क्या है। वो साइकिल को ध्यान रखिए कि वो कितने बजे वो पर्टिकुलर, कई बच्चे मैम हमने नोटिस किए हैं, कई बच्चे पर्टिकुलर टाइम पे ही बेड वेट करते हैं। हाँ जी सर। हाँ, पर्टिकुलर टाइम पे, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको फोकस करना है कि इस पर्टिकुलर टाइम से पहले ही मुझे आप बच्चे को उठा के वॉशरूम तक लेके जाना है। फिर उसके बाद वो जब ओके। साइकिल क्रिएट होगा तो उसको उठने की आदत पड़ जाएगी, और उठने की आदत से फिर वो आपका बिस्तर खराब नहीं करेगा। हाँ जी सर, एकदम सही कहा आपने। वेलकम पूजा सर, पूजा नमस्ते कह रहे हैं। नमस्ते पूजा। आयुर्वेदा फॉर लिविंग इज सेइंग थैंक यू फॉर आंसरिंग सर। यस, बहुत ही आपने बढ़िया से समझाया बेड वेटिंग का इंटरवेंशन। वेलकम शहीदा, वेलकम बेला, वेलकम सेजल, वेलकम एवरीवन टू द शो। सर एक और क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे हाँ पूजा जी। का। माई डॉटर इज 5 years और वो रोज बेड गीला कर रही है, और 2 से 5 पिल्स नहीं, एट 2 एंड फिर बिटवीन 5 to 6, मतलब 2 बारी गीला कर रहे हैं, 2 बजे और फिर 5 से 6 के बीच में। और फिर नीतू, हाय हाय नीतू। तो तो ये वेलकम देखिए मैम, एवरीवन टू द जैसे शो। क्वेश्चन मैम ने जैसे क्वेश्चन किया है कि 2 बार गिला के हैं, एक तो 2 और 5 to 6। अगर पहले तो देखिए कि बच्चे को वो बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही कि उसने गिला कर दिया, उससे खड़े होकर करके पूछिए। अगर नॉर्मल बच्चा है तो कोई इशू नहीं है, स्पेशल किड्स नहीं है हमारा, तो आप उससे पहले पूछिए कि आप ये क्या किया आपने, आप क्यों ये करते हो। उससे रीजनिंग करो, क्वेश्चनिंग करो, तो बच्चा कुछ ना कुछ आपको दिखाएगा रीजन कि हाँ मैं नहीं करूंगा, या मुझे सॉरी मम्मा, या कुछ भी ऐसा बोल सकता है बच्चा। अगर उनमें थॉट प्रोसेस सही है तो वो थिंकिंग कर पाते हैं बच्चे। तो अगर वो थिंकिंग नहीं कर पाते तो पहले उनके थिंकिंग पे काम करना पड़ता है, वो अलग तरीका है, वो सेंसेस का काम है, वो सेंसरी के ऊपर काम करने से उनकी थिंकिंग प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट आता है। लेकिन अगर बच्चा समझ रहा है कि हाँ मैंने कुछ कर दिया है, तो आप उनको एक अलार्म दीजिए कि आप जैसे आप बता रहे हो कि वो हमेशा ही करता है, 2 करता है तो 2 से पहले आप लेके हाँ। जाइए, 5 to 6 से पहले लेके जाइए आप। तो सर वो एक, कह रही है एक कि वो साइकिल पर बिल्कुल ले। नॉर्मल है, उनकी डॉटर बिल्कुल हाँ, नॉर्मल है, उसे ऐसे कोई हाँ। प्रॉब्लम नहीं है। तो एंड यस, सर नेम इज तो आप, आंचल। ओके, यस। हाँ। हाँ, तो फिर हाँ जी वही है सर। कि आप फिर उससे नॉर्मल की तरह एक साइकिल क्रिएट कीजिए। और साइकिल जैसे जैसे अब 2 है तो 2 से पहले आप उसे थोड़ा सा और ज्यादा पानी पिलाइए, और 2 से जैसे ही पहले हो यानी 1:30 हो तो उसको लेके जाइए बिफोर। देन आप देख पाएंगे कि हाँ बच्चा जगना स्टार्ट कर दिया उसको, या उसको पता लगने लगे कि नहीं कुछ वो। और रिवॉर्ड और पनिशमेंट वाला सिस्टम रख सकते हैं। पनिशमेंट ऐसा नहीं, नेगेटिव पनिशमेंट नहीं, पॉजिटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट में मतलब ये मैं समझा देता हूँ पॉजिटिव पनिशमेंट कैसे देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मारूंगा पीटूंगा जब समझेगा बच्चा, नहीं। हाँ। पॉजिटिव पनिशमेंट ये होता है मैम कि बच्चे को तकलीफ भी ना हो, और बच्चा समझ जाए कि मुझे तकलीफ हो रही है। आप ये समझिएगा, जैसे एक बच्चा, बेड वेटिंग की बात कर लेता हूँ मैं कि पनिशमेंट कैसे। हम कहते हैं कि हाँ जी बच्चों सर। को आपको नहीं सुलाएंगे, हम अपने साथ नहीं सुलाएंगे, अब आपको हम नहीं सुलाते, ठीक है, हम नहीं सुलाएंगे, अब आप यहीं रहो, आप खड़े रहो, अब हम सुलाएंगे नहीं आपको, आपने क्यों किया बेड पे, हम्म। ठीक है। तो उस तरीके से बच्चा फिर रोता है, फिर डरता है। वहां पे आपने मारा भी नहीं, कोई पीटा भी नहीं, ना कुछ ज्यादा गुस्सा किया उससे, बस आपने बोल दिया कि नहीं सुलाएंगे आपको, हम अपने साथ।
वहां से बच्चा फिर सीखता है कि नहीं, अगर मैंने ध्यान रखूंगा इस बार कि हाँ मुझे क्या करना है, तो एक तो साइकिल पे काम कीजिए, पनिशमेंट पे काम मत कीजिए, लेकिन अगर उससे भी थोड़ा सा आगे जाना है तो आप इस तरीके से आप उनको कर सकते हो, ताकि समझ और अच्छे से डेवलप हो कि नहीं मुझे इस चीज का ध्यान रखना है। क्योंकि बच्चे जैसे ही थोड़ा बहुत करते हैं उनको ध्यान आ जाता है, नहीं मम्मा कुछ हो रहा है। ये तो है सर। तो सर अगर मैं आगे, वेलकम एवरीवन जिन्होंने भी इसके बाद ज्वाइन किया है, वेलकम टू द शो। इसके बाद सर अगर मैं आगे आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे कुछ एक्टिविटीज हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने अभी बेदिंग की बात करी हमने, तो सर ये पर्सनल हाइजीन या हम कहें टॉयलेट हाइजीन की भी आपने बात करी है अभी, कि कैसे हम बेड वेटिंग को स्टॉप कर सकते हैं। फिर आता है सर कपड़े पहनना, मतलब इसमें बहुत पेरेंट्स को दिक्कत होती है कि हमारे बच्चा अपने आप को खुद ड्रेस नहीं कर पा रहा, खुद जूते नहीं पहन पा रहा, खुद सॉक्स नहीं पहन पा रहा। तो इसके लिए कैसे सर, इसके इंटरवेंशन के लिए हम घर में क्या कर सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, पहली तो बात समझना, जैसे जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि हमें ये समझना जरूरी है कि मेरा बच्चा किस कंडीशन का है। उसके हम्म। हाथ पैरों में कोई दिक्कत तो नहीं है, या उसके ब्रेन को थिंकिंग प्रोसेस में कोई दिक्कत तो नहीं है, या थॉट लगा पाता है, या हम्म। समझ पाता हम्म। हमारी बात को। दूसरी चीज ये कि डिस्क्रिमिनेशन है, मैचिंग है, इमिटेशन है, उस चीज को समझ पाता है कि नहीं समझ पाता। इमिटेशन और मैचिंग की बात क्यों कर रहे हैं, इमिटेशन अलग है, मैचिंग अलग है। इमिटेशन का मतलब ये हो जाता है कि जब आप फिजिकली कुछ इमिटेट करते हो तब वहां पे हम करते हैं, उसको बोलते हैं इमिटेशन में लेके आते हैं। हम्म। मैचिंग को जब हम बात करते हैं तो पर्टिकुलर थिंग से ऑब्जेक्ट को लेकर बात करते हैं, फिजिकल हम्म। इमिटेशन को लेकर बात नहीं करते। तो हमें ये समझना जरूरी है कि जब हम बच्चे के साथ बाथिंग या टॉयलेटिंग या कुछ, टॉयलेटिंग में थोड़ा सा अलग हो जाता है, थोड़ा टॉपिक अलग हाँ। है, लेकिन मैं बात, हाँ। जैसे आप बात कर रहे हो बाथिंग की या ड्रेसिंग की बात कर रहे हैं, उस पर डिस्कस कर रहा हूँ मैं। टॉयलेट को लेकर भी मैं बात करता हूँ। तो जैसे इमिटेशन की बात कर रहा था, तो वहां पे पहले तो ये सोचिए कि जो आप यूज करना चाह रहे हो बच्चे को, जैसे जो जो क्राइटेरिया यूज होते हैं, सपोज दैट मैं आपको बताऊं कि अगर मुझे ड्रेसअप करना है अपने आप को, तो पहले हाँ मुझे जी। ये समझना पड़ेगा कि मेरे सामने क्या कपड़ा है, मेरे सामने कपड़ा है भी कि नहीं है, या वो जो मैं कपड़ा है वो क्या मम्मा का कपड़ा है, पापा का कपड़ा है, या मेरा खुद का कपड़ा है। ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। मैं, कई बच्चे समझ नहीं पाते कि ये मैं टी शर्ट पहन रहा हूँ या शर्ट पहन रहा हूँ, वो एक ही तरीके से हाथ डालने की कोशिश करते हैं। तो वो डिस्क्रिमिनेशन समझ में आना चाहिए। फिर आता है मैचिंग। मैचिंग तो दो कलर का, अगर आपने बोला कि बेटा रेड कलर का टी शर्ट पहनो, बच्चा क्या करता है, व्हाइट कलर उठा लेता है। तो वो मैचिंग आ रही कि नहीं आ रही है उसे, वो आपने बोला टी शर्ट वो उठा रहा है शर्ट, तो वो डिस्क्रिमिनेशन या वो मैचिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसे। तो वो उस पर काम करना जरूरी है। फिर उसके बाद आता है कि वो जो आप कह रहे हो क्या उसे समझता है, सुनता है, ध्यान से समझने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है कि हाँ आप क्या बोल रहे हो पर्टिकुलर। ठीक है, क्या वो चीजें जो आप बोल रहे हो वो राइट वे में ले रहा है, उसका परसेप्शन कैसा है, उस पर काम, बिलीफ सिस्टम कैसा है, वो शर्ट को लेकर डरता तो नहीं है। कई बार बच्चे डर जाते हैं हम्म। शर्ट को लेकर कि नहीं मैं क्या पहन रहा हूँ, या बहुत ज्यादा वो हो रहा है, बच्चे खींचने लग जाते हैं शर्ट को। हमने बहुत सारे इशू देखे हैं ऐसे। टी शर्ट निकाल देते बच्चे, पहनना पसंद नहीं करते कहीं। फिर ये देखे कि कहीं सेंसिटिव इशू तो नहीं चल रहा है बच्चे में, टच को लेके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे कई रफ कपड़े होते हैं, कई सिल्क कपड़े होते हैं, तो पर्टिकुलर किस कपड़े को लेके उसको प्रॉब्लम आ रहा है, उस पर काम करना जरूरी है। तो जब इस स्टेप से काम करते हैं, जब आप ड्रेसअप करने की कोशिश करते हैं बच्चों की, आप खुद पहनो ये, तो आप ये देखिए कि फर्स्ट स्टेप क्या है। स्टेप में चलिए कि फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप देखना है, देन सेकंड स्टेप है आपका हाथ डालना उसके अंदर। तो वो क्या, वो अपने हाथ को समझता है कि नहीं समझता। आपने ये मोस्टली देखा होगा कि हम जैसे बच्चों को मैचिंग कराते हैं, इमिटेट कराते हैं, हैंड्स जी। आप हाँ जी। रोलिंग या क्लैपिंग, बच्चे करते ही नहीं, और आप कहते हैं कि अपना बच्चा पहनता नहीं है कपड़ा। तो पहले ये तो देखे कि बच्चा वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा अपने हैंड्स को, क्या वो डालने के लिए वहां तक लेके जा रहा है कि नहीं जा रहा। फिर वो कोऑर्डिनेशन का आता है, फिर वो कोऑर्डिनेशन पे काम करना पड़ता है कि हाथ से कपड़े भी पकड़ो और एक हाथ से डालो भी। बायलेटरल इंटीग्रेशन का यूज होता है वहां पे, बायलेटरल बायलेटरल ग्रोस मोटर का यूज कर रहे होते हैं। तो वो पर्टिकुलर वो बायलेटरल पे काम किया हुआ है कि नहीं हुआ, वो बहुत छोटा स्टेप उठाइए उसका, अगर काम करना है तो बायलेटरल पे। तो पहले वो स्टेप पे काम कीजिए, देन आप सोचिए कि हाँ मेरा बच्चा अब उसके अंदर डाल सकता है, हैंड्स को अंदर डाल सकता है, इजीली कन्वर्ट डाल सकता है। तो पहले देखना चाहिए कि ग्रोस मोटर उसका फिजिकल इमिटेशन उतना सेंसिबल है कि नहीं है, उसका लैग को यूज करने का तरीका पता है कि नहीं पता है, उसको पता है कि हाँ मैं अपने पैरों को कैसे यूज कर सकता हूँ, जहां वो पैरों को यूज कर रहा है वहां वो देख रहा है कि नहीं देख रहा है वो। तो ये सब कुछ टर्म है, जैसे मैं कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि जैसे कोऑर्डिनेशन कंडीशन है, बैलेंसिंग है कि नहीं है बच्चे में, वो सब चीजें। हाँ जी। अदरवाइज उसको पैंट पहनना है या कुछ निक्कर पहनना है तो उसको बैलेंस 1 लाख पे बैलेंस करना आना चाहिए।
हाँ तो जी ये सर। सब चीजें देखने की जरूरत पड़ती है। तो आप पर्टिकुलर देखिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है और वो किस स्किल्स में आ रहा है, वो स्किल्स के कंपोनेंट में कहाँ पे प्रॉब्लम है, उस कंपोनेंट को पर्टिकुलर उठा लीजिए। बच्चे में मैं हार्डली कर रहा हूँ, अगर कोई काम सिखाना है आपको तो 15-20 दिन से ज्यादा नहीं लगता। लेकिन हाँ, आपको समझना पड़ेगा किस पॉइंट पे लेके बच्चों को दिक्कत है, वो पॉइंट समझने की कोशिश करना है, बस वहां पे फिर हमारा इंटरवेंशन निकल के आ जाता है। वेरी वेल सेड सर, कि हमें ये पहले जानना है कि कौन से स्किल में प्रॉब्लम है और फिर उस पे ही हाँ, फॉलो करें। और तो सर ये हाँ, आयुर्वेदा। और कौन से स्टेप में लेके प्रॉब्लम हो रहा है बच्चे को, वो पर्टिकुलर स्टेप को उठाइए और वहां पे फिर एक्टिविटी पे देते, बहुत सारी एक्टिविटी है पर्टिकुलर स्टेप के लिए, उस एक्टिविटी को कीजिए और बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिए। कई बच्चे होते हैं जो इतना आईक्यू नहीं होता उन बच्चों को, और आप चाहते हैं कि एडीएल आ जाए, तो बहुत छोटा सा एक स्टेप उठाइए और छोटे से स्टेप से लेके बहुत हाई लेवल पे जाइए, तब जाके आप लास्ट आउटकम निकलेंगे एडीएल। और सबसे लास्ट आउटकम ही होता है मैम एडीएल। हमारा रोल ही यही कि हम एडीएल सिखाए बच्चों हाँ जी। तो को। सर यहाँ पे आयुर्वेदा फॉर लिविंग कह रहे हैं, यस दिस इज द आइडियल मैनेजमेंट इन केस ऑफ बेड वेटिंग। अच्छा, जो आपने बेड वेटिंग के लिए बताया उसके लिए कह रहे हैं। एंड medication is मेडिसिन also मेडिसिन available in, yes, ayurveda for handling all this। हाँ जी सर, आपके आयुर्वेदा अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है, जिसे डेफिनेटली मैं किसी दिन यहाँ पे लेके आना चाहूंगी कि स्पेशल नीड्स और आयुर्वेदा का क्या रोल है। तो पेरेंट्स, दिस इज ऑल्सो विच आई एम गोइंग टू ब्रिंग सून टू यू। वेलकम तेजस्वी, वेलकम एवरीवन टू द शो, वेलकम दिव्या। तो सर मैं एक आपसे आखिरी चीज ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि आप टॉयलेट ट्रेनिंग के ऊपर थोड़ा सा बताएंगे, तो आप उस पर थोड़ी लाइट डालेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बहुत जरूरी हो जाता है जब हमारे बच्चे हो जाते हैं 5-6 साल के हो जाते हैं, तो हम पेरेंट्स बहुत हम्म परेशान होने लग जाते हैं कि अब तो बहुत ज्यादा हो गया, अब कैसे किया जाए काम। तो पहली तो बात कि जैसे बच्चा बड़ा होने लग जाता है तो बड़े होने का इंतजार मत कीजिए। ये जो लेवल है, जो टॉयलेट ट्रेनिंग का जो स्टेप है, वो 1 ईयर के बाद ही स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको कहता हूँ, इस चीज ओके को सर। ध्यान में रखिए। ये कोई स्टडी भी है इसकी, और स्टडी को समझते नहीं है लोग कि 1 ईयर के बाद ही जैसे बच्चा थोड़ा सा चलना फिरना लग जाए, तो उसके बाद ही आप स्टार्ट कर दीजिए। उसको ये समझ में आना हाँ चाहिए जी। कि जो ये शिशु है, पोटी है, उसको ये टॉयलेट करने का जो तरीका है वो क्या है पर्टिकुलर, उसको समझ में आना चाहिए। वो हाँ जी। सिचुएशनल रखिए, सिचुएशन को समझाइए उसको कि ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन में यहाँ पे ये चीजें होती है, या इस सिचुएशन में ओके। यहाँ पे ये चीजें करनी होती है। तो वो सिचुएशन और वो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा आपको, और एक साइकिल देखना पड़ेगा कि बच्चे का खाना खाने के बाद या पानी पीने के बाद वो कब जाता है। एक पर्टिकुलर टाइम रखिए और उस टाइम पे उस सिचुएशन में लेके जाइए। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे मैम, कई बच्चे होते हैं कि जो फ्रिक्वेंटली पता नहीं होता कि कब करना है मुझे, या ये कभी भी कर देते हैं। तो ओके। उनको एक टाइमिंग, जैसे हम लोग एक टाइमिंग रखते हैं मैम, जहाँ पे हम्म जैसे अगर बच्चे को मुझे पानी पिला दिया और मेरे को पता है कि इसे सुसु करेगा, तो हम्म आप उसको 15-20 मिनट बाद उसको लेके ही जाइए और वहां पे बैठाइए। हम्म और जब बच्चा वहां पे सुसु करता है तो फिर उसको पता लगता है कि नहीं, यहीं पे टॉयलेट करना चाहिए मुझे। तो एक अंडरस्टैंडिंग ओके। डेवलप होती है, एक कंडीशनिंग डेवलप होती है कि नहीं, ये चीजें यहीं पे हम्म हो सकती है। तो हम लोग टाइमिंग हाँ रखते हैं जी। कि पूरे दिन में आप एक टारगेट बनाओ कि 4-4 आवर्स में आप टाइमिंग रखो कि हाँ, इसे अच्छे से पानी पिलाना है और उसका आधे घंटे के बाद ही लेके जाना है, ताकि उसे ओके पता सर। रहे कि हाँ, मुझे यहाँ पे ये चीजें करनी है। एक तो ये फर्स्ट स्टेप ये। सेकंड स्टेप में प्रॉब्लम आता है कि बच्चा जब वॉशरूम में जाता है तो वहां पे एक अंधेरा सा होता है, जहाँ पे डर लगता है बच्चे को, या हाँ जी सर। टॉयलेट वेस्टर्न सीट पे बैठने में डर लगता है, या कोई कंडीशन जैसे सीपी की कंडीशन, या उन बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वहां पे सिखाना पड़ता है कि कैसे बैठना होता है। कई बच्चे होते हैं कि जो फियर में होते हैं, जैसे ऑटिज्म के बच्चे, वो डर जाते हैं अंधेरे को देख हम्म के, या ज्यादा ब्राइटनेस को देख के डर जाते हैं। तो वहां पे ये देखिए कि बच्चा किस वजह से डर रहा है, कहीं हाँ बैठने की जी। वजह से तो नहीं डर रहा। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप बहुत छोटा छोटा स्टेप उठाइए, यानी वर्चुअल स्टेप उठाइए। किसी भी बच्चों को अगर किसी चीज को लेके फियर हो रहा है, वॉशरूम को, एनवायरमेंट को लेके फियर है, तो वर्चुअल स्टेप उठाइए। आप उसे वॉशरूम में ना ले जाके उसको, जो टॉयलेट सीट होता है उसको एक क्रिएटिव वे में बना लीजिए घर में ही, जहां पे बच्चा सोता है, जहां पे बच्चा खेलता है, वहीं पे उसको प्ले करवाइए उसी के साथ। जब वो हाँ जाएगा जी। उस वॉशरूम में तो सिमिलर वे में वहां पे वो अच्छा कर रहा होगा काम, क्योंकि फिर वहां पे डर खत्म हो जाता है, फियर ओके खत्म हो सर। जाता है। तो वहां से बच्चा एक वर्चुअल थिंकिंग, वर्चुअल एक बनाइए या क्रिएटिव कीजिए उसको, और पोर्ट बनाइए, वहां पे बैठाने के प्रैक्टिस कराइए।
अब जब बच्चा बैठना स्टार्ट करता है तो वहां से फियर खत्म हो जाता है कि मुझे कहाँ बैठना है, क्योंकि वो ऑलरेडी बैठ रहा है, वो एंजॉय कर रहा है वहां पे बैठ के। ठीक है, तो ये चीजें समझनी जरूरी है। एक तो ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप ये है मैम कि कई बच्चे क्या करते हैं, पैंट पहनना नहीं आता उन्हें, या ये पैंट को डॉनिंग और डॉफिंग नहीं करने आता उनको। तो हमें ये समझना है कि बच्चा क्यों नहीं कर रहा, पुट ऑन क्यों नहीं करना, टेक ऑफ क्यों नहीं कर रहा। तो ये पैंट पहनना और पैंट उतारना, उसके बाद क्या करना है, हैंड वॉश करना, देन उसके बाद मुझे बाहर जाना है, ये एक स्टेप है। तो पहले ही देखिए, पहले बच्चा पैंट निकाले देन बैठे, पैंट निकाले फिर उसके बाद बैठ के कुछ करे, फिर उसके बाद देखिए बच्चा खड़ा हो रहा है नहीं हो रहा, उसके बाद देखिए कि ऊपर की तरफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और वो उसी स्टेप में जहां पे बच्चा नहीं कर रहा वो एक स्टेप में काम कराइए। और आपको पता है कि किसके बाद क्या करते हैं, तो पहले एक टारगेट रखिए कि 1 वीक का टारगेट रहेगा हमारा या 10 डेज का टारगेट रहेगा कि मुझे ये वाला स्टेप सिखाना है इसको। एकदम से सारी चीजें मत बताइए कि बेटा ऐसे करो, बेटा वह करो, बेटा ऊपर करो, बेटा ऐसे करके, ऐसे नहीं, एकदम से सारी चीजें मत सिखाइए। एक स्टेप में सिखाइए, बेटा आओ बैठो, फिर बच्चे ने कुछ कर लिया, फिर उठो, वॉश करो उसको, फिर उठो, फिर पैंट ऊपर करो, फिर पैंट पहनना ऊपर नहीं कर पा रहा तो उसी को सिखाइए पहले 1 वीक, उसी पे काम कीजिए। 1 वीक जब उस पर काम हो जाएगा तब आप नेक्स्ट स्टेप पे आइए कि अब आप चलो हैंड वॉश करने, हैंड वॉश सिखाइए उसको। कहाँ पे हैंड वॉश करते हैं वो पर्टिकुलर एरिया समझाना पड़ेगा उसको, ग्राफिक्स स्किल्स कहते हैं हम इसे। तो उस ग्राफिक्स स्किल्स पे काम करना पड़ेगा कि उसको पता रहे कि कहाँ जाना है मुझे, कहाँ पे वॉश हैंड वॉश करने जाना है। तो फिर वहां पे हैंड वॉश करने का स्किल सिखाइए, जाने का स्किल सिखाइए। तो वो पर्टिकुलर स्टेप पकड़ लेंगे तो इसके स्टेप में आप समझ पाएंगे कि हाँ कहाँ पे मुझे पर्टिकुलर काम करना है। और इसी स्टेप से मैम हम लोग टॉयलेट ट्रेनिंग सिखाते हैं, एकदम से हम पूरा नहीं सिखाएंगे। बहुत अच्छे सर, आपने बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया। वेलकम नीलम, वेलकम दृष्टि, हेलो। आई एम लेट टुडे, इट्स ओके दृष्टि, दिस शो विल बी अवेलेबल आफ्टर दिस ऑल्सो, यू कैन लॉग इन टू आई एम यूनिमो पेज एनी टाइम एंड वॉच व्हाट यू हैव मिस्ड। हेलो राजू सर, सर आपके कोई राजू कुमार, डॉक्टर प्रदीप 7 PM का टाइम था। यस सर, दिस शो रन एवरी संडे एट 7 PM। मासूम मुस्कान स्ट्रगल्स बिहाइंड इनोसेंट स्माइल। तो 7 o'clock एवरी संडे आप लॉग इन कर सकते हैं और आप आई एम यूनिमो को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी आते रहें कि कब आई एम यूनिमो लाइव जा रहा है। तो सर मैं लास्ट आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसा मोस्टली हमारी जो है आर कम्युनिटी इज अ कम्युनिटी ऑफ मदर्स, सभी को पता है यूनिमो इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मदर्स कम्युनिटी, और हमारा पूरा मोटिव है एम्पावरमेंट करने का मदर्स का, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, होम मेकर हो या बिजनेस वुमेन हो या फिर वर्किंग क्लास हो। तो हमारा पूरा मोटिव ही यही है इस कम्युनिटी को फॉर्म करने का कि हम मदर्स को एम्पावर करें। तो एक मैसेज आपकी तरफ से हमारी मदर्स के लिए। मैसेज मैं क्या दूं, मैं तो पेरेंट्स से सीखता ही हूँ, लेकिन फिर भी एक मैसेज ये जाना चाहिए कि आप अपने बच्चों को, अपने जो स्पेशल किड्स हैं उनको एक प्रॉपर लविंग के साथ, लव नेचर के साथ आप उनको समझने की कोशिश करो। और एक समझने की कोशिश के साथ ये होना चाहिए कि जब आप अपने बच्चों को समझते हैं तो अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़नी चाहिए। पहली अंडरस्टैंडिंग जब आपकी अच्छी रहेगी देन ही आप बच्चे के ऊपर अप्लाई कर पाएंगे। और वो अंडरस्टैंडिंग कब रहेगी, जब आप अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार दिखाएंगे। प्यार जब भी दिखाएंगे आप, जब अपने बच्चे को समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ मेरे बच्चे में ऐसा क्यों है, क्या रीजन है, कैसे हो सकता है, कब हो सकता है, तो बिल्कुल स्टडी कीजिए और मैम के साथ जुड़िए और सीखिए कि बहुत ज्यादा हम कैसे बच्चे को समझ सकते हैं और कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को, नॉर्मल बच्चों को भी सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो स्पेशल हो या ना हो, दोनों को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हर बच्चा मैम अलग है। कुछ ना कुछ हमारे इंडियन कल्चर में अभी उस लेवल पे नहीं गया है कि हम हर बच्चे को बहुत साइकोलॉजिकली समझे बच्चे को। तो हमें समझना जरूरी है, साइकोलॉजिकली अपने बच्चों को समझिए ताकि बच्चे का एक ब्राइट फ्यूचर हो और वो आपका नाम रोशन करे और हमारा भी नाम रोशन करे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपने अपना टाइम थैंक दिया यू और सो हमारे मच। शो में इतनी अच्छी अच्छी थैंक बातें यू, बताई सबको। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक मैम। यू फॉर कमिंग ऑन द शो। आई एम श्योर बहुत सारे पेरेंट्स बेनिफिट करेंगे आपके इस थैंक यू पूरी मैम, जो थैंक आपने यू, नॉलेज अपनी शेयर की है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। So this was Dr. Pradeep Kumar जो आज से हमारे साथ, and he was discussing about the basic ADL activities, यानी कि activities of daily living, जिसके बारे में उन्होंने बहुत important चीजें आज हमें बताई और बताया कि how
we can, actually point out the skill which the child is lacking and then work on that particular skill. उन्होंने कहा एक बारी में हम एक ही स्टेप बच्चे को सिखाएं, मल्टीपल स्टेप्स ना सिखाएं, so that the learning is easier for the child. Welcome everyone who has joined the show, and I invite you all to be a part of this special show to make it super special for our parents in need and the kids in need. So whether you are a parent or an expert, or you know somebody who can spread positivity and awareness for these people, feel free to contact us. All the details, the email, the form, everything is given in the description of the show. And apart from this, I would like to tell you that Unimo has an amazing lineup for live shows every day from 5 p.m., 7 p.m. and 9:30 p.m. 3 टाइम पे हम लोग ऑनलाइन जाते हैं, डिफरेंट शोज फॉर डिफरेंट जॉनर्स. आप अपना फेवरेट जॉनर चूज कर सकते हैं और अपना शो देख सकते हैं. साथ ही साथ प्लीज फॉलो आई एम यूनिमो सो दैट यू कीप गेटिंग द इंफॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन कि हम कब लाइव जा रहे हैं और किस शो के साथ हम लाइव जा रहे हैं. Apart from that, don't miss coming here tomorrow at 5 p.m. तो 5 p.m. पे कल हमारा शो होगा फिटनेस एंड यू, एक नए गेस्ट के साथ जिसमें बात होगी फिटनेस के बारे में. एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट संडे 7 o'clock at the same place. I am Unimo on Instagram. So until then, stay home, stay safe, and I'm keeping everyone in my positive and healing thoughts. Signing off. Bye bye.